پھر اس میں دیکھوں گا کہ وہ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ٹھیک ہے بھی کہ نہیں. ہاں جی، جرمن ڈاکٹر کا ثبوت چاہیے، اتنے کسی مرزائی ڈاکٹر کا ثبوت نہیں چاہیے. صحیح ہے. ہاں جی. یار اور کیا اس کے علاوہ جھوٹ بتاؤں گا، میں ثابت کروں گا مرزا محمود کے جھوٹ، مرزا ناصر کے 1978 کے بولے ہوئے جھوٹ، مرزا طاہر کے جھوٹ، مرزا مسرور کے جھوٹ بھی میں ثابت کروں گا. اور مرزا غلام اگر احمد کسی مرزائی میں ہمت ہے تو میرا مقابلہ کرے، سامنے آئے. نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے بھی جھوٹ آپ ثابت کریں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ آپ کرتے ہو، روز کرتے ہو، ان کو کاذب دجال ثابت کرتے ہو. یا یہ سارے مرزائی جھوٹ آپ جماعت بتا رہے مرزا ہیں، صاحب جہاں کو پر روز آپ کاذب اور دجال ثابت کر کے جاتی ہے. چلو پھر وہ راجہ صاحب کریں گے. وہ تو کرتے ہیں نا روز. میں آ کے جی وہ جھلی بڑھ گئی پیٹ کی، سیالکوٹ سے وہ آیا، مرزا صاحب نے کرتا اٹھایا، ہاتھ پھیرا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہ اس کی جھلی ٹھیک ہو گئی. بھائی مرزا صاحب تو اپنے فوت ہونے تک اپنی بیماریوں کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. کیسے کیسے یہ بہرحال جھوٹ بول کے چندہ نکلواتے ہیں لوگوں سے. بہرحال پھر جی آستانی مرزا بھائی صاحب کی نے ایک آواز سوٹا بہت رکھا کم ہے. ہوا تھا، مرزا صاحب نے کہا یہ سوٹا لے جو، جس گھر میں ہوگا اس گھر میں سانپ نہیں آئے گا. مرزا صاحب کے گھر میں سوٹا تھا، مرزا صاحب کے گھر میں ایک سانپ پل رہا تھا مرزا محمود کی شکل میں. یعنی سوٹا کسی کام کا نہیں تھا. سوٹا انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں چندے لوٹنے کے لیے احمدیوں سے. چندے شروع کس نے کیے تھے اکبر بھائی؟ وہ مرزا صاحب نے تو ایک چندہ لگایا تھا، چلو وہ بھی ایک کیا اپنی مطلب مرضی ہے، سے دو، جتنا اپنے اوپر ڈیڑھ خود مقرر کر لو. کوئی ڈیڑھ تو 50 بھائی نا. پیسے دے، 1 روپیہ دے. اگوں مرزا محمود نے آ کے ٹھوک دیتا ہے انہوں بنی اسرائیل دی طرح. انہیں پرسنٹیج لاتی. دنیا دے وچ چیریٹی ہوندی ہے، کتے کوئی پرسنٹیج نہیں ہوندی. یہ مرزا محمود نے چنگا ٹھوکیا ہے احمدیاں نو. مرزا صاحب نے شروع کیتا نا. نہیں، مرزا صاحب نے تو ایک چندہ اس ٹائم انہوں نے ضرورت تھی. جی السلام باقی جو علیکم. ٹھوکیا ہے نا خلیفیاں نے، عطاب دی گھوڑی بنا کے چنگا ٹھوکیا ہے احمدیاں نو. وہی تے میں کہہ رہا مسعود صاحب کہ دیکھو گند کو لڈو مذہب کہتے ہیں. یہ قادیانی اکبر صاحب قادیانیوں کے چلو فرقے جی پھر جمبا اللہ گروپ سے حافظ. تعلق رکھتے ہیں، اور ٹاک ماسٹر صاحب قادیانیوں کے فرقہ سوریہ سے تعلق رکھتے ہیں. مفتی مبشر صاحب اب یہ دیکھیں یہ آپس میں ایک منٹ دونوں میری گل بیٹھ کے نا سننا، مرزا مفتی قادیانی کو صاحب جوتیاں رسید ایک کر منٹ رہے گل ہیں. سننا، ایک منٹ گل سننا. وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کے جھوٹ بھی بیان کرو، وہ کہتے ہیں نہیں تم جھوٹ بیان کرتے ہو. اب یہ دیکھ لیں اور کہ میری یہ گل سن لو نا، میں تہاڈے خلاف گل نہیں کرن لگا، میری گل سن لو ایک منٹ. بات ساڈی بھی تے سن لو نا ہن. اچھا تو چلو تھوڑی اینی دیر دی بیٹھ کے سنتے سن آپ تو ہن ساڈی بھی سن لو. سناؤ. اچھا میں اردو میں بات کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہے دوستو، یہ ہے قادیانیت. وقت آنے پہ یہ نا اپنے مرزے قادیانی کو انہیں لتر پھیرنے شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی ساری نا کرسیوں کی لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں. ایک قادیانی کہتا ہے کہ میں نے چودھری بننا ہے، میں نے فرقے کا جو ہے نا وہ بننا ہے خلیفہ. دوسرا قادیانی کہتا ہے نہیں میں بننا ہے. تو ان کے تو کوئی 7100 فرقہ ان کے اپنے اندر بن گئے ہیں، اور ان کو مرزے قادیانی کی عزت سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. ان کو صرف اپنی کرسی سے ہے لینا دینا. اور یہ 24 گھنٹے بیٹھ کے نا آپس میں کتوں کی طرح لڑائیاں ہوتی ہیں ان قادیانیوں کی. ایک دوسرے کے نا کھمبے پٹتے ہیں یہ. اب وہ تتر ہو گئے ہیں نا، تتر ہو گئے ہیں نا. برداشت نہیں نہ ہوتا. ہن مینوں دسو اے مذہبی گلاں نے کہ انہیں کڑی جمی تے منڈا جمیا تے وہ جی مرزا طاہر کی کڑی سے میں نے نکاح کرنا تھا توبہ سے، جمبا صاحب کہتے ہیں انہوں نے کدھر اور کر دیتا. تے بس یہ کڑیوں کے لینے دینے پڑے ہوئے ان کو، بس اور کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے. یا تو کرسی کا لینا دینا ہے یا قادیانی کڑی کا لینا دینا ہے. تو یہ ہے قادیانیت، اصل حقیقت یہ ہے ان قادیانیوں کی. تو یہ ابھی جو بیٹھے ہوئے تھے ٹاک ماسٹر نام کی آئی ڈی سے، یہ مرزا مسرور والے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ جو بیٹھے ہوئے تھے ابھی اکبر صاحب، یہ قادیانیوں کا ایک فرقہ ہے عبدالغفار جمبا گروپ، اس سے یہ تعلق رکھتے ہیں. اور ابھی
जनाब एक तीसरा फिरके से ताल्लुक रखने वाले नज़ीर साहब भी तशरीफ ले आए हैं, अब इनकी सुन लीजिएगा। जी नज़ीर साहब, ये आपके दो फिरकों के भाई ये आके कह रहे थे कि मिर्जा कादियानी के झूठ किस फिरके ने बयान करने हैं, तो अब आप बयान करेंगे कि नहीं मिर्जा कादियानी के झूठ फरेब? जी नज़ीर साहब। ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੋੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਲਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਝੂਠ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਓ। اخلاق ਮੁਹੰਮਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਦਮ ਕਰਵਾਓ ਭਾਈ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓ। चलो मैं बयान करता हूँ, चलो फिर माइक म्यूट करें, ਭੂਕੇ ਮਾਰੋ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ माइक ਸਾਫ਼ म्यूट करें, मैं बयान करता हूँ। ਉਮਤ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਕੀ जी ਪਤਾ। मैं बयान करता हूँ, माइक तो म्यूट करेंगे तो फिर है ना, आप जो काम नहीं कर सकते वो आजज हाजिर है ना। हाँ ਤੁਸੀਂ ਦਮ ਕਰਵਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਕੋਲੋਂ, ਪੀਰ ਕੋਲੋਂ आपके ਦਮ फिरके ਕਰਵਾ तो ਕੇ मिर्जा कादियानी के झूठ और फरेब नहीं बयान करते, चलो हम बयान कर देते हैं, हमारी जुबान से सुन लें। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ माइक जरा म्यूट करेंगे तो फिर ये ना नज़ीर साहब ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰੀ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦਰਦਾਨ ਇਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹੈ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਓਏ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ मिर्जा जी ने क्या सी, असल खुदा परस्त बनो, असली खुदा परस्त बनने का तरीका है कि कुत्ती का बच्चा बन जाओ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ आप गलत बयानी कर रहे हैं। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਕਰਰ ਸਨ, ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। नहीं सही बयानी करे ना, गलत बयानी ना करे, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, सच्ची बयानी करे, सच्ची बयानी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ गलत ਸੀ बयानी ना करे। ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਚ ਪੇਚਸ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੁੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੌਂਕਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੇਚਸ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਤ ਚ 100 ਦਫਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਤਾਉल्ला ਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਡਰੋ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਡਰੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਖਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਭੌਂਕੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੁੱਤੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਜਿਲਦ ਪੰਜਮ ਤੇ ਸਫਾ 97। वत भौक हो गए, वत चला गया। ओहो, मलफूजात जिल्द पंजम ते सफा 97। मिर्जा जी फरमाते हैं सच्चे खुदा परस्त बनो, और सच्चा खुदा परस्त बनने का तरीका उन्होंने बताया कि कतूरे बन जाओ, यानी कुत्ती के बच्चे बन जाओ। तो चले ही गए, अभी झूठ मैंने बयान करने थे, तो चलो मैं 2-4 झूठ बयान करता हूँ मिर्जा जी के। मिर्जा जी के 2-4 झूठ सुने जी। फरमाते हैं कि अहादीसे सहीहा से भी साबित होता है कि मसीह मऊद 6000 में पैदा होगा। रूहानी खजान जिल्द 22 है, सफ़ा 209 है। दुनिया की किसी एक हदीस से साबित कर दो, कादियानियों मुंह मांगा इनाम ले लो। मिर्जा कादियानी तो कहते हैं अहादीसे सहीहा में आया है। आगे अगली गप सुनो जी मिर्जा जी की। फरमाते हैं रूहानी खजान जिल्द 21 है, सफ़ा 118 के ऊपर बाज अहादीस में भी आ चुका है कि आने वाले मसीह की एक ये भी अलामत है कि वो जुल्कर नैन होगा। दुनिया की किसी एक हदीस से साबित कर दो, मुंह मांगा इनाम ले लो कादियानियों। या मान लो कि मिर्जा कादियानी कज़्ज़ाब है, फ्रडिया है, और जो कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए झूठ बोलता है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी नहीं, फरमाया कि जिसने मेरी तरफ झूठ की निस्बत की उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जन्नम में बना ले। और मिर्जा जन्मी है, कज़्ज़ाब है, फ्रडिया है, जिसके बारे में मिर्जा का अल्लाह हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि कज़्ज़ाबून और दज्जालून जाहिर होंगे, जो कि तुम्हें ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएंगे जो ना तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे बाप दादों ने सुनी होंगी।
حضور نے ان کو دجالون اور کذابون کہا ہے، کذاب اور دجال کہا ہے۔ اوے مان لو کہ مرزا قادیانی دجال اور کذاب ہے، حدیث کی روح سے، حضور کے فرمان کی روح سے، یا یہ ثابت کر کے ہم سے منہ مانگا انعام لے لو، آ جاؤ۔ جھوٹ وہ لوری کہہ رہا ہے، وہ جمبا گروپ کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹ بیان کرو، تو وہ سوری گروپ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم بیان کرو مرزا قادیانی کے جھوٹ۔ لو تو بیان کوئی کسی ایک نے بھی نہیں کیا، تو پھر جب تم نہیں مرزے کے جھوٹ بیان کرو کہ مولویوں نے تو کرنے ہی کرنے ہیں، تو بھاگتے کیوں ہو؟ ڈٹ کے مقابلہ کیا کرو قادیانیوں۔ تمہیں کوئی منہ میں ڈال لے گا کیا؟ رکتے ہی نہیں ہیں، رکتے ہی نہیں ہیں، دوڑنے کی کرتے ہیں، دوڑے لگوا دی ہیں تمہاری اے اللہ کے حکم سے۔ اے قادیانیوں، اے کیا تمہارے اوپر عذاب طاری ہو گیا قادیانیوں، کہ کوئی مجاہد ختم نبوت ابھی جاتا ہے تو تم لوگ بھاگ جاتے ہو، اور ٹکتے ہی نہیں ہوئے قادیانیوں، اور دوڑے لگوا دی مجاہدین ختم نبوت نے تمہاری۔ سنو جی مرزا جی کی گپ سنو جی، فرماتے ہیں حدیثوں میں صاف طور پر بھی بتلایا گیا ہے کہ مسیح موعود کی بھی تکفیر ہوگی، اور علماء وقت اس کو کافر ٹھہرائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسا مسیح ہے، اس نے تو ہمارے دین کی بیخ کو نہیں کر دی۔ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 213 کے اوپر۔ میں کہتا ہوں دنیا کی کسی ایک حدیث سے یہ ثابت کر دو، منہ مانگا انعام لے لو قادیانیوں، جاؤ۔ اور 3 مرزا قادیانی کی بیان کردہ حدیثیں میں نے پیش کی ہیں، ابھی 3۔ میں یہاں 10 حدیثیں پیش کر سکتا ہوں کہ جو دنیا کی کسی ایک کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، لیکن مرزا کی کتاب میں ضرور لکھی ہوئی ہیں۔ مقابلہ کرو نہ ہو، نکلو قادیانیوں، نکلو اے باہر۔ صرف گالیاں نکالنا، بد کلامیاں کرنا، الزام لگانا، یہی ہے تمہارا دین مذہب قادیانیوں۔ اور آج تک الحمدللہ ہم نے کبھی گال نہیں نکالی تمہیں، مرزا قادیانی ضرور تم کو گالیاں نکالتا ہے، کبھی وہ کتی کا بچہ کہتا ہے، کبھی رنڈی کا بچہ کہتا ہے، کبھی گشتی کا پتر کہتا ہے، کبھی حرامی کہتا ہے، کبھی خنزیر کہتا ہے، اور تم کو کہتا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے۔ تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ ساری گالیاں۔ اگر کوئی شک اور شبہ ہو تو آؤ ہمارے سامنے آ کے شک شبہ دور کر لو، اور ہمیں کہو کہ یہ کہاں پہ مرزا نے گالی لکھی ہے، ثبوت نہ دے تو ہمیں تم کہنا کہ تم جھوٹے ہو۔ جی مسعود صاحب کرو گل بھائی، نس بھاجی گئے نے، ہوں بندہ کی کرے اتنے۔ مفتی صاحب میں نے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے۔ جی جی عرض کریے۔ مفتی صاحب یہ ہمارے ساتھی خاص کر عامر نذیر صاحب اور یہ ولید صاحب جب مسلمان کوئی سچی بات کرتے ہیں یہ کیوں بھاگتے ہیں؟ ان کی بھاگنے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ اصل میں آسکانی صاحب ان کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، مرزا قادیانی جھوٹا ہے، کذاب ہے، ان کو پتہ ہے، سب پتہ ہے ان کو، یہ اس لیے رکتے نہیں ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ جی آپ میرا سوال ہی نہیں سمجھے۔ میرا عرض یہ ہے کہ عامر نذیر صاحب اور ولید صاحب جب میں کوئی بات کر لیتا ہوں یہ دم دبا کے بھاگتے کیوں ہیں؟ عامر نذیر صاحب بھاگتے ہیں؟ جی اچھا مجھے تو نہیں پتا، میں نے کبھی دیکھا اب میں بات کر رہا تھا عامر نذیر صاحب کے جگری دوست سے، کیا نام ہے وہ، حلیم، کیونکہ حلیم کیا نام ہے؟ عامر نذیر صاحب کے دوست حلیم جی قادیانی، علیم، اچھا علیم، جی جی یہاں بکواس کر رہے تھے اور زبان درازی کر رہے تھے میرے بارے میں۔ میں نے جب ان کو گلے سے پکڑ لیا تو عامر نذیر صاحب دم دبا کے اپنا ہی بروڈ چھوڑ دیا، اور صدر مناظر بنے ہوئے تھے ولید صاحب، وہ بھی دم دبا کے پر کر کے عامر نذیر کے پیچھے۔ وجہ
मैंने ये तो असल एक में कादियानी आसकानी को साहब गले- मेरे इलम में तो नहीं है कोई कि क्या हुआ, क्या माजरा हुआ। हुआ यूं मुफ्ती साहब कि हलीम साहब आए और हलीम साहब गुफ्तगू कर रहे थे, अच्छा अच्छा। और वो हलीम साहब ने ये कहा कि जंबा ने झूठ बोला है। वो हम तो जानते हैं वो झूठे हैं, सब झूठे हैं। हमने तहकीक की है, उस डॉक्टर ने ये बताया है हमें कि मैंने तो शुरू से कहा था कि लड़का होगा, मैंने तो लड़की कहा ही नहीं है। तो यहाँ पर वो दूसरा जो साथी है जंबा को मानने वाला अकबर खान, उन्होंने कहा कि ठीक है सबूत पेश कीजिए। अब हलीम साहब आके क्या कहते हैं, ठीक है मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें सबूत दे दूंगा। भाई तेरी भाषण की क्या औकात है? तुम उस डॉक्टर का जिसने ये सबूत दिया है, ये कहा है कि जंबा झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो शुरू से लड़की, वो वीडियो पेश करो। मैंने कहा कि हलीम साहब आपकी वीडियो की कोई हैसियत नहीं होगी, आप जो कुछ कहेंगे, जिस तरह लतीफ़ साहब ने कहा ना झूठ बोल के 5-6 ऑडियो बनाए, आमिर नज़ीर साहब को दे दिया कि ये देखो सबूत है। उन्होंने क्योंकि झूठ बोला था कि मिर्ज़ा जी का वही अकीदा है जो अहमद दीदास का है, जो अहमद दीदास का अकीदा है वही मिर्ज़ा जी का अकीदा है। वो कहाँ पेश करो, पेश नहीं कर पाए, अपनी वीडियो किस्तवारी बनाते गए। तुम भी वही करोगे, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। मुझे आकर ये कहता है ये कादियानी आमिर नज़ीर साहब का दोस्त जिगरी कि आसकानी तुझे तो गुफ्तगू का आदाब ही नहीं है, तुम्हें तो तमीज़ ही नहीं है। मुझे बदतमीज़ और अपने जो है वो गलत बातों से मुझे ज़ेर करना चाहता था। मैंने आमिर नज़ीर साहब के दोस्त के गले पर जो है अपना पाँव रख दिया और उसको जो है दबाना शुरू कर दिया। आमिर साहब को तकलीफ हुई और ग्रुप छोड़ के भागे, और अक्सर यही करते हैं, इससे मेरी बेइज्जती हुई। भले उन्होंने कुछ नहीं कहा, भले किसी को इल्जाम नहीं लगाएं। पीर साहब अपना मुफ्ती साहब उनके सीनियर नहीं है तो वो ड्राइविंग कर रहे हैं, इस तरह गलत बयानी कर रहे हैं। पीर साहब बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, नजायज। मैं ना अहमद अली माजरे को बैठ के समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास मालक है, मेरी बात सुने, मेरे पास मालक है, मुझे मजबूरी बोलना पड़ा है। वो गाड़ी चला रहे थे, उनको मैंने बोला भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उनके सिग्नल नहीं है, तो वो नीचे उतर गए हैं। जब उनके सिग्नल ड्रॉप हो गए तो ये गलत बयानी इधर कर रहे हैं। पीर साहब उनका दोस्त है, वो भाग गया है, ये बात अच्छी नहीं है। पीर साहब इस तरह लड़ाई होती है आपस में, ये अच्छी बातें नहीं होती हैं। तो आप करें मुफ्ती साहब बात। अच्छा ये है कि आपने मेरा गला दबाना है तो दबा दीजिए। बात यह है मुफ्ती साहब, जब मैं बात कर रहा था तो आमिर नज़ीर साहब आए और चिल्ला के कहा खामोश खामोश खामोश। क्यों कर रहा था ये, क्यों खामोश? मैंने तो अपने मुजरिम को पकड़ा हुआ है जिसने मुझ पर जो है ज्यादती की। आप क्यों मुझे खामोश कर रहे हैं? कि पीर साहब के शोर ना करें, आप अकेले को नहीं बोला, हमने दोनों को बोला था कि क्या मेरे पास है। मुझे किस हक में बोला? अच्छा अली साहब मेरी गलती है, अभी थोड़ा सा मुफ्ती साहब से बात तो करने दीजिए। फायदा उठाए, मैं ब्राड कंट्रोल नहीं कर सकता, मालक मेरे पास है, ज्यादा मैं ब्राड बंद कर लूँ ना, तो अमर भाई है तो ना तो बंद ही करेंगे, यही करोगे आप लोग, हमेशा यही करते हो ना भाई। अहमद आखिरी बात मुझे कह लेने दें, फिर ब्राड बंद करिएगा ताकि रिकॉर्डिंग हो रही है। आप लोग यही करते हो, अहमद यही बात करते हो जब अपनी गलती अहमद आखिरी बात मुझे कर लेने देना, तो फिर ब्राड बंद मुफ्ती करना। साहब मेरी बात मुकम्मल सुन लीजिए, मैं दो टोक अल्फाज में मुज़म्मत आसकानी साहब जरा माजरत, मुझे माजरत सिर्फ 2 मेरी मिनट, बात ज्यादा तो नहीं, मुकम्मल मुझे होने सिर्फ 2 दीजिए। मेरी बात तो मुकम्मल होने दीजिए मुफ्ती साहब। आमिर नज़ीर साहब दुम दबा के भागे, दूसरा क्या है वो वलीद, आमिर नज़ीर साहब के पास हुज्जत होगी कि नेट का उसका मामला था, हो ठीक है झूठ बोल के। आमिर भाई आ गए हैं, आमिर भाई आ गए हैं, आमिर भाई को ऊपर लो। आमिर भाई या ते ब्राड बहना होवे ते ठीक, ना बहना होवे ते सारे उतरे ला दिया करो, अली म्यूट सारे ला दिया करो। मैं काम छड़ के मालक मेरे कोल ने ते तमाशबी दी मैनू वारत नाल भी लगी है। भाई मुझे म्यूट क्यों कर रहे हो जालिमो? अपने काम अल ध्यान कर लगा रहे। जालिमो मुझे क्यों म्यूट कर रहे हो? अली ना म्यूट कर। अच्छा मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए, आमिर नज़ीर साहब, जब मैंने आमिर नज़ीर साहब के दोस्त के गले को पकड़ा और दबाना शुरू कर दिया क्योंकि उसने ज्यादती की मुझ पे, यहाँ आके उन्होंने शोर कर दिया चुप करो, देखा मैं चुप नहीं करूंगा क्योंकि मेरा तो वो मुजरिम है। अब आमिर साहब दुम दबा के भागे बरोड़ से।
वली साहब जो सदर मुनाजर बने हुए थे, जब देखा इमाम साहब भागे हैं वो भी भागे, उनका भी नेट खराब था। इससे हुई मेरी बेइज्जती। ये मुसलमानों की बेइज्जती खुद क्यों करते हैं आमिर साहब और वलीद साहब? ये है मेरा सवाल, बस जी ये है मेरा अस्कानी गिला साहब, इनसे। बात समझ आ गई है मुझे। मैं अर्ज करता हूँ, बात ये है कि पता है क्या, आप सारे ही मुजाहिदीन खत्म नबूवत हैं, तो कोई ऐसी कोई काम ना किया जाए कि जिससे ये कादियानी दुश्मनों को कोई फ़ायदा हो और वो जग हसाई बन जाए, और अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, बहुत ही गैर मुनासिब है। अगली बात यह है कि आमिर नज़ीर भाई का अपना एक मजाज है, और बसा औकात ऐसे होता है कि बंदा एक गुफ्तगू चल रही होती है तो बीच में कोई थोड़ा बहुत भी बोले तो वो एक मुनाजर को वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो वो हम भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि आमिर नज़ीर भाई को मैंने चुप करवा दिया है क्योंकि बात मेरी चल रही है, तो इन्होंने कभी नहीं बुरा महसूस किया। और ऐसे ही मैंने कई दफ़ा बात की तो इन्होंने मुझे भी चुप करवा दिया, चुप चुप चुप, तो मैंने कभी बुरा नहीं महसूस किया। तो ये मामूल की बातें हैं। तो उन्होंने तो देखिए आपको अपना भाई समझ के ही चुप करवाया ना भाई। रोब और दबदबा तो वहाँ ही चलता है कि जहाँ पे कोई अपना होता है, पता होता है कि भाई ये आगे से जर जाएगा, ये सब्र और तहम्मुल कर जाएगा, ये आगे से गुस्सा नहीं करेगा। तो ये बातें तो वैसे तो अस्कानी साहब प्यार मोहब्बत वाली हैं, तो कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे कादियानी खुश हों, बस मैंने यही कहना। मुझे वो गाली देते, मुझे वो उतार देते, मुझे दुख नहीं होता, लेकिन उन्होंने बगैर कुछ कहे मेरी बेइज्जती की। क्यों मेरी बेइज्जती की? और ये पहली मर्तबा नहीं है। मुफ्ती साहब और वली साहब भी दुम दबा के उसके पीछे भागे। मुफ्ती साहब ये बेइज्जती क्यों की? मैं ये कह रहा हूँ। मुफ्ती साहब मेरी तरफ से बात ये साहब एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए, उन्होंने फरमाया जी ओए तू चुप कर, साडे अपने आपस दा मसला है, तू कौन आ गया? चुप कर, चल निकल निकल तू, मैं तेनू कड्डन लगा, निकल तू। अच्छा अस्कानी साहब, आमिर नज़ीर साहब की तरफ से अगर आपका दिल कोई दुख है, तो अगर आपने महसूस किया है तो मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है? तो वैसे ऐसी बात हो नहीं सकती। कोई यकीन, एक बंदा होता है ना यकीन कर ले, मैं यकीन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हुआ होगा, कतल नहीं हुआ होगा। बात यह है कि गलतफहमी हो जाती है, कोई बात नहीं। और अगली बात अस्कानी साहब ये है कि खास करके जो कादियानियत के रद्द पर काम करते हैं ना जो लोग, वो अपनी इज्जत नफ्स को घर में छोड़ के आती है। वो अपने आप को तो कुछ समझते ही नहीं ना, ये वैसे है। तो कोई नहीं बात है, अगर आप समझते हैं कि आपकी बेइज्जती हुई तो ये है कि अव्वल तो आपको खुद ही माफ कर देना चाहिए था, और अगर फिर भी नफ्स और शैतान उबारे तो मैं आपको से माफी का तलबगार हूँ, ठीक है? तो आप देखें इसका फायदा ना सरासर कादियानियों को होना कुछ भी नहीं, होना कुछ भी नहीं। तो अल्लाह, मुफ्ती साहब सुन लीजिए, मेरी तरफ से तो माफ है, लेकिन ये हरकत जो है जो की गई, ये कौन दे रहा है? ये जो है वो कादियानी को आमिर नज़ीर साहब, मैं उनका भाई जब बात कर रहा हूँ, अपने मुजरिम को पकड़ा हुआ हूँ, तो उनको चाहिए ये कि भाई आपने तो बेइज्जती की, अगर नहीं करेंगे तो खामोश तो रहें कम से कम, या मुझे खामोश करें गिराएं, कहें आप अस्कानी साहब मैंने आपको गिराया है, बाद में हम बात कर लेते हैं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन मेरी गुफ्तगू के दौरान ब्रोड छोड़ के भाग जाना, और जो वलीद साहब उनके शागिर्द हैं और सदर मुनाजिर थे, उनका भी दुम दबा के भागना, ये बात कादियानियों के हक में थी। ये इनको जेब नहीं देता कि इस तरह के करें। भाई उनको पसंद नहीं आया, मेरे बड़े हैं, वो नीचे मुझे उतार दे और कहें अस्कानी साहब मैंने इसलिए आपको उतारा है, इस वक्त आपको बोलने की जरूरत नहीं, मुझसे बाद में बात कर लीजिएगा, खलास, मैं उनसे पूछूंगा भी नहीं बाद में। लेकिन ब्रोड को मैं अपने उस इंसान से जिसने मेरी बेइज्जती की, मैं उनको पकड़ा हुआ हूं। आमिर नज़ीर साहब का ये आकर कहना खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, अब जब दोनों तरफें खामोश नहीं हो रहे,
खुद भाग जाते हैं। ये बेइज्जती है मेरी। आगे जो सर्द मुनाजर है, देखा इमाम साहब भागे, ये भी भाग जाते हैं। गोया कि आस्कानी इस वक्त तुम गलत कर रहे हो। इन्होंने साफ ये कह दिया, कादियानी को बता दिया कि आस्कानी साहब यहाँ पर गलत थे, आस्कानी साहब बोल रहे थे, इसलिए हम इस गुफ्तगू में शामिल नहीं हैं। हमारे हलीम, हमारे दोस्त जिगरी, हम आपके साथ हैं, आस्कानी पागल है। मैं इससे ये समझा हूँ, जो बहुत गलत बात थी। अस्सलाम वालेकुम। बाकी माफ है मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आस्कानी साहब गुजारिश ये है कि चलें, कोई नहीं, खैर मेरे अगर कोई ज़्यादा कोई मसला हुआ तो वो बंदा पर्सनल के अंदर कर लेता है, कोई मसला, ये हमारे आपस में भाइयों के मसले हम कर लेंगे तय, वो कोई मसला नहीं। इसको इतनी हवा नहीं देंगे हम, इतना तूल नहीं देंगे। यकीन मानिए, ये देखिए अहमद अली की ब्राड़ लगी है तो कोई कुछ अरसा कबल इसके साथ मेरी भी ब्राड़ के ऊपर हुई है। इन्होंने, मसूद साहब जरा माइक म्यूट करिए। तो मतलब ये कि ब्राड़ से इन्होंने मुझे उतार दिया, हालांकि मेरी डिबेट चल रही थी। यकीन जाने मैंने कोई बुरा महसूस नहीं किया। हो जाता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई मतलब, और दूसरा जो होस्ट कर रहा है उसके अपने कुछ मामलात हैं, वो सारी चीजों को देखना पड़ता है। पता नहीं उसके साथ भाई क्या मसला हो, क्या वो मैनेज कर रहा है, ब्राड कर रहा है वो, तो ये मामला तो हो जाते हैं। ये कोई इतनी कोई बड़ी कोई बात नहीं है। तो और तजलील की बात जो आप कर रहे हैं कि नहीं, आमिर साहब की ऐसी तबीयत ही नहीं है। ये तो कादियानियों की तजलील नहीं करते तो अपने भाइयों की इन्होंने करनी है। ऐसा नहीं है। तो आपको वो हो सकता है कोई मुफ्ती भाई, इसीलिए आमिर भाई को बोलने दे, जरा नजीर भाई को आने दे माइक पे, वो यहीं बैठे हुए हैं। हाँ, जी। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी गुफ्तगू में एक लतीफ़ नुक्ता है जो आपने महसूस नहीं किया। वो नुक्ता ये है कि आपको ये पूछ लेना चाहिए उनसे कि आप नेक्स्ट टाइम हमें बता दें कि अगर आपको नीचे उतारा जाए तो बेइज्जती है या खुद नीचे उतर जाए तो बेइज्जती है। आपने हमें पहले बता देना है, लो भाई तुम्हारे चुप कराने से मैं चुप नहीं कर रहा, अब तुम नीचे उतर जाओ तो मेरी बेइज्जती है, मुझे नीचे उतार दो तो भी बेइज्जती है। भाई क्या करे वो बंदा, क्या करे जो कह रहा है ना लड़ो ना शोर करो। ब्राड पे मच्छी मंडी बनी हुई है, वो भी ऊंची ऊंची आवाज़ से बोल रहे हैं, हलीम साहब भी, और ये भी ऊंची ऊंची आवाज़ से शोर कर रहे हैं ब्राड पे। मैंने कहा चुप कर जाएं, खामोश हो जाएं, नहीं हुए। अब मैं इनको नीचे उतारूं तो बेइज्जती है या मैं खुद नीचे उतर जाऊं तो बेइज्जती है? कौन सी बेइज्जती है मुझे ये नहीं पता चल सका। इनसे ये रिक्वेस्ट कर लें कि अगली बार आपने अनाउंस कर देना है कि देखो मैंने चुप नहीं करना, ये मच्छी मंडी हमने जो बनाई हुई है ये जारी रखेंगे, तुम नीचे उतरो तो बेइज्जती है, जो मुझे नीचे उतारो तो भी बेइज्जती है। तो फिर क्या तुम्हारे पास रास्ता है? आपने सुना हुआ ना वो मकूला के वो बाप बेटा गधा लेकर जा रहे थे तो किसी ने कहा कि देखो कितने बेवकूफ़ हैं, गधे के ऊपर नहीं बैठते, खुद आगे से पकड़ के चल रहे हैं। तो उसने कहा चलो बाबा आप ऊपर बैठ जाए, मैं नीचे चलता हूँ। वो बाप बैठ गया तो आगे एक बंदा मिला, उसने कहा कितना जालिम बाप है, बेटा नीचे चल रहा है वो ऊपर बैठा है। उसने कहा अच्छा ऐसे करो तुम ऊपर आ जाओ मैं नीचे चलता हूँ। वो बेटा ऊपर बैठ गया, बाप नीचे चलने लगा। तो एक बंदा मिला, उसने कहा देखो कितना बेअदब गुस्ताख बेटा है, बाप नीचे चल रहा है ऊपर खुद ऊपर बैठा, दोनों ऊपर बैठ गए। तो एक बंदा मिला, उसने कहा देखो कितने जालिम है, गधे के ऊपर दोनों बैठे हुए, छोटा सा गधा बेचारा कितना लोड उठाएगा। तो उन्होंने कहा भाई इसका एक ही हल रह गया कि गधे को सर पे उठा लो। भाई हमें बता दें अगली बार हमने गधा सर पे उठाना है, क्या करना है हजरत साहब? आपकी मिन्नतें की, चुप कर जाएं, शोर ना करें, बारी बारी बात कर लें। यही कहा, क्या गलत कहा? क्या बारी बारी बात करें? जब एक बंदा, मैं एक बात असूली में बयान करके फिर आपको मौका देता हूँ, मिर्जाई यहाँ पर आकर ये कहे कि मैं आपके साथ बारी बारी बात करने के लिए तैयार हूं, और आप कहें कि मैं आपको बारी नहीं दूंगा, बारी आपकी नहीं है, जबरदस्ती करें, मेरी नज़र में हमारी गलती है, हमारी तरफ से गलती है। जब मिर्जाई ये कहे हम बारी बारी बात करने के लिए तैयार, भाई ये तो हमारा असूली मौक़िफ़ है। दुनिया के किसी प्लेटफार्म पर, किसी अदालत में, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर, किसी में ओए पप्पू ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬਲਾਕ ਪੱਪੂ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ।
ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, उन्होंने अनब्लॉक कर दो, लेकिन वो काल बेशक ना चुको। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा सूली मौक़िफ़ है कि मिर्ज़ाई के साथ हम बारी बारी बात करेंगे। अगर आपके पास दलील है उसे कहीं भाई बयान कर लो, और को कहा ने अली उन्होंने अनब्लॉक कर दे, उन्हें नहीं मैनू गल करन देनी है। मुफ्ती साहब उन्होंने अनब्लॉक कर दो, थल्ले उन्होंने बयान दो। जी असल च ब्लॉक करना ते मैनू आंदा ते अनब्लॉक करना को नहीं आंदा। ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਇਆ ਜੇ ਹੁਣ। ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਸਫਾ 781 ਹਿੱਸਾ ਸੋਮ और कादियानिया दी हदीस नंबर 893। कादी यार मोहम्मद साहब हजरत अकदस को नमाज में तकलीफ देते थे। वो तकलीफ कौन सी देते थे कि मिर्जा कादियानी वो जनाब जब सजदे में जाता था तो कादी यार मोहम्मद आके पीछे से उंगल ठोक देता था। हजरत मसीह मऊद की मोरी के अंदर उंगल ठोक देता था, ये दरमियान वाली फिंगर, वो क्या कहते हैं यार इंग्लिश में, मिडल फिंगर। मिडल फिंगर नहीं, मिडल फिंगर थी वो तल्ला साहब, मिडल फिंगर। पाओ लुटिया चीका निकलिया जे, पाओ लुटो लुटिया पाओ, लुटिया पाओ चीका शुरू, कादियानियां दी चीका शुरू। 14वीं सदी दे आलम, तुम्हारी यही लैंग्वेज, यही इखलाक होना चाहिए जो तुमने दिखाया। खुश ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਢਾਣੀਆਂ ਨੇ, मखलूक और ਵੱਡੀਆਂ बदतरीन ਚੀਕਾਂ मखलूक, ਕਢਵਾਣੀਆਂ ਨੇ। तो तुम्हारा यही इखलाक होना चाहिए। मलक साहब इखलाक से मलक इंसान साहब को कहना चाहता है, ए आमिर साहब आप आलम रह जाओ चुप के। हाँ जी, हौसला करो, मैं गल मैंने कर ले तो साडी गल खत्म हो अपने गई। आलम की जबान सुन लो। हाँ जी, हाँ जी, मुसलमानों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक ਉਹ सादिक ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੈਸੇ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਮ ਬੜਾ ਯਾਰ ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼। ਕਰ ਜੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ये ਛੇੜੋ, मुसलमानों की मुफ्ती है। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ मुसलमानों की ਨਾ। मुफ्ती की लैंग्वेज और ਉਹ ਫਿਰ इखलाक ਤੁਸੀਂ सुन लो। ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਲਕ ਜਾਓ, ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਹੋ जाओ। वास्ता जे चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। मैं देखिए एक फायदे की बात कर, आपके ही फायदे की मैं बात कर रहा हूँ। हमें आप लोगों के साथ दलील से बात करनी आती है, हमारे पास दलाइल मौजूद हैं। हमें आपके साथ धक्का करने की ज़रूरत नहीं है मलक साहब। हम आपके साथ, जब आप कहेंगे भाई आप अपनी बारी में बात कर लो, हम अपनी बारी में बात कर लेंगे। तो हमारा बंदा नहीं मान रहा तो मेरी नज़र में हमारा भाई ज्यादती कर रहा है। भाई ये है मेरा मौक़िफ़। आप पीर अस्कानी भाई को बात कर लेना, फिर मलक साहब आपको देते हैं मौका। जी पीर अस्कानी भाई। ये हकीकत के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि आपने अपनी हरकत से मेरी बेइज्जती की, जबकि मेरा और उनका कोई दूबदू बात नहीं चल रहा है कि उसका वक्त है, मेरा वक्त है। मैंने सिर्फ इतनी बात की कि आपने मेरी बेइज्जती की है, उससे माजरत करें। अब उस पर मैं उनको बारी दे दूं कि वो मजीद बात करता रहे और फिर मैं अपनी बारी में बात करूं। नहीं, वो मिनटे नहीं आपके कर रहा था, आपको नहीं कह रहा था कि मुझे अपनी बारी। मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। अच्छा, अब ये कोई बारी यहाँ पर नहीं चल रही है कि मैं उनको बारी दे दूं कि वो मजीद बातें करते रहे, फिर बात करूं। भाई मैंने उनको ये कहा है कि तुमने मुझे क्यों कहा कि तुम्हें आदाब नहीं आते, तुम बदअखलाक हो, गलत बात की है। मैंने कौन सी गलत बात की है? इससे माजरत करो। वो मजीद अपनी तावीलें कर रहा है, पीछे क्या है वो मुझे मालूम है, आपको नहीं। पीछे इस बात का गरज क्या है वो मुझे मालूम है, जबकि मैं इस तरह की बात करता नहीं हूं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो मेरा मामला है, उसका मामला है, तुम्हारा नहीं। अब मैं उनको 5 मिनट दे दूं, फिर मैं 5 मिनट बात करूं कि मुनाजरा चल रहा था, नहीं चल रहा था। बात सिर्फ इतनी थी, उसने मेरी बेइज्जती क्यों की, मैं उसको ये पकड़ रहा हूं, तुमने मेरी बेइज्जती क्यों, मुझे बदअखलाक, बदतमीज़ और गुफ्तगू के आदाब नहीं जानते, मुझे क्यों कहा? इसका जवाब दो, इससे माजरत करो। कहते हैं मैं माजरत नहीं करूंगा, नहीं करेगा मैं बात करने नहीं दूंगा। बात ही खत्म है ना। जब वो माजरत नहीं कर रहा है इस बात से, मैं उसको गुफ्तगू का मौका क्यों दूं, उसकी तावीलें क्यों सुनूं? ये है। अब आपका ये कह देना कि हमारा ये कुलिया कायदा है, ये आपका कुलिया कायदा कादियानियों के लिए है, अपने भाइयों के लिए नहीं है। क्यों आपका अपने भाइयों के लिए नहीं है ये कुलिया कायदा?
आप अपने भाइयों को क्यों जूता मारते हैं, क्यों जलील करते हैं? तुम्हारा भाई उस पे एक कादियानी आकर कीचड़ उछाल रहा है और उसको गलत कह रहा है, आप भाई सीधा सीधा कहो कि भाई आपने ये बात गलत की है, माजरत करता है, ठीक, नहीं करता नहीं, आपका इतना ही काम है। ग्रुप छोड़ के भाग जाना और ये कह देना कि हमारे भाई की गलती है, आप कह रहे हैं, यानी आपने मुझे गलत साबित किया। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं बोलना पड़ गया काम छोड़ के वैसे 1 to 1 एक मिनट अहमद भाई और दोबारा चलता है ही पीर साहब ने आगे गंद की थी वलीद ने आपने भी शरीफ बंदा है, उन्हें हर मुसलमान ये कहेगा, मेरी बात सुनो अमर भाई, उन्हें वलीद गल पे कराना सी नीम नहीं दे अकबर हां दी मैं थोड़ा गलती है जिन्हें मुसलमान है ना, मैं वो ये लफ्ज की गल करो दे ना नहीं बनते हैं गलती इस बंदे दी पीट दी अलीक बोश हो जा, बोश हो जा। मैं कहता हूँ आप मुसलमानों से पूछ लें, जितने भी यहाँ पर भाई बैठे हुए थे, उनमें से अगर कोई कहे कि आप ज्यादती नहीं कर रहे थे, मैं आपसे माजरत मांग करूंगा। मैंने ये किस बात की ज्यादती कर रहा था? सुने तो सही, किस बात की ज्यादती कर रहा था? मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ किस बात। बताइए। बात यह है कि जो कुछ उसने आपको कहा, जितनी बड़ी गाली दी, उसको 99 से ज़रब देना। शोर बहुत है आपकी माइक में के अंदर। जितनी उसने आपकी तौहीन कर दी ये कहकर कि आपको तो इखलाक का नहीं पता, आप तो बात करना नहीं जानते, अदाब नहीं है महफिल के, इसको 99 से ज़रब देना, तो भी उससे भी बड़ी गंदी गालियां उस बंदे ने मुफ्ती मुबशर को यहाँ बैठे हुए मेरे सामने दी हैं। मुफ्ती साहब ने बिल्कुल लब नहीं खोले अपने, लेकिन जब मुफ्ती साहब ने लब खोले, उस वक्त आप भागे? सुने तो सही, उस वक्त आप भागे? सुने तो सही, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मैं इस पॉइंट को आपको पकड़ रहा हूँ ना, हाँ, पॉइंट है मेरा पॉइंट जिसको आप दरगुजर कर रहे हैं। मैं शिकस्त लिख देता हूँ, आप जीत गए, मैं हार गया, लेकिन बात तो मेरी बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आगे नहीं, उस वक्त आप मुफ्ती साहब ने जब उनको गालियां दी, मुफ्ती साहब को गाली दे रहे थे, आप भागे थे? मैं बताता हूँ म्यूट करें, आपके माइक से शोर आता है, इतना बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट तक उस बंदे ने मुफ्ती साहब को गालियां दी, मैं बैठा सुनता रहा, मुफ्ती साहब बैठ के सुनते रहे, कोई बंदा हमें से बोला ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये सूल है कि हम बारी बारी बात करेंगे। जब वो बात कर चुकेगा, हमारे पास इतना बड़ा बड़ा इंजेक्शन है कि फिर वो हमारा इंजेक्शन सह नहीं पाएगा। मुफ्ती साहब बोले ही नहीं, वो पहले ही छोड़ के भाग गया। मैंने फोन करके उसको कहा कि आप मैदान छोड़ के क्यों भागे हो, अब मुफ्ती साहब की बारी थी, सुनना था ना। ये है तरीका पीर अस्कानी भाई। अगर मैंने ये बात गलत कही है कि मिर्जाई के साथ बारी बारी बात करनी चाहिए, जबकि मिर्जाई आपकी मिन्नत कर रहा है, अगर मैंने आपकी तौहीन भी की है, मैंने झूठ भी बोला है, मैंने गलत बात भी कही है, तो मुझे कर लेने दें, आप बाद में कर लेना। ये क्या, इसमें क्या गलती है? बहरहाल अगर आप समझते हैं मुफ्ती साहब की, नहीं, सुनो भाई, मुफ्ती साहब की और उनकी क्या बात चल रही थी जो गालियां दी उन्होंने? अब तो वो मुझे गालियां भी याद नहीं है कि 2-3 महीने पुरानी बात। मुफ्ती साहब बताएं क्या उस दिन गालियां आपको दिए? क्या हुआ था? बहुत गंदी गंदी गालियां। मैं ना क्या हुआ था? वो बात ऐसी थी, मुझे याद है। थोड़ा सा मेहरबानी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मेहरबानी। यार देखें, आस्कानी साहब शोर आ रहे हैं आप। अच्छा, ये है कि आप दोनों मुअज़्ज़िज़ीन हैं, मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत में आपका एक नाम है, और पता है क्या हो ये रहा है कि जो दीगर मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत बैठ के सुन रहे हैं ना, वो परेशान हो रहे हैं आपकी इस उलझन को देख के, वो परेशान हो रहे हैं। कादियानी तो खुश हो ना, उनका तो काम ही है खुश होना, वो यही तो काम चाहते हैं। तो मेहरबानी करें, मैं कहता हूँ मेरी मान लें, यहाँ पर इंसाफ कर दें, मेहरबानी फरमाएं। मैंने तो कह दिया कि मेरी तरफ से ख़त्म है बात, लेकिन मैं यही बताना चाहता था कि आमिर नज़ीर साहब मौके महल को छोड़कर किसी बात को कहीं जाकर पिट कर लेते हैं। आपकी गुफ्तगू का और उनकी गुफ्तगू का कोई मसला कुछ और है, आप दोनों बात कर रहे हैं, वहाँ दो बदू किसी को टाइम है कितना भी। मैं यहाँ पे मैं जिससे बात कर रहा हूँ, मेरी दो बदू उनसे बात चल रही है, वो जितनी भी बात करता है मैं म्यूट हूँ। कभी आप कह नहीं सकते आपने बीच में बोला, बल्कि मेरे टाइम पर जब वो बोलता है मैं कहता हूँ भाई मेरे टाइम पे क्यों बोल रहे हो?
जब दूबदू किसी की बात चल रही हो तो उसको टाइम है। यहां दूबदू कोई बात नहीं है मेरे उनसे। और पहले ही यहां आमिर नजीर साहब ने कान में जरूर कुछ वहां पर डाला होगा, वो खुशबू वगैरह सुना नहीं। जब उन्होंने बात की कि आसकानी का इताब चल रहा है, कौन सा इताब चल रहा है जरा पूछा उन्होंने? पीछे क्या बात है उन्होंने पूछा? तकलीफ की इस बात की? वो भूल गए क्योंकि उनका दोस्त है। किस बात का इताब चल रहा है बताओ? मालूम है तुम्हें आमिर नजीर साहब किस बात का इताब चल रहा है? क्या बात उन्होंने की थी? आमिर नजीर साहब खोलिए मैक। आमिर भाई। अच्छा आसकानी साहब, जरा थोड़ा सा बीच में हाफ टाइम भी होता है ना, तो ये एक मौला बस साहब कादियानी मुरब्बी साहब तशरीफ लाए हैं। ठीक है भाई। बात सिर्फ इतना है कि उनको नहीं मालूम पस मंज़र क्या है, आमिर रज़ी साहब को नहीं मालूम पस मंज़र क्या है, उन्होंने पहले क्या किया, मैंने किस बात को कोट किया, उनको भी नहीं मालूम। और हमारी कोई जो है बेवजह बात चल ही नहीं रही थी। उनको मैंने इसी बात में पकड़ा, पीछे कोई और मसला है। उनको पकड़ के रखा कि भाई वो आपने जो मुझे बदतमीज़ और बदअखलाक और गुफ्तगू नहीं जानते, इसका जवाब दो, माजरत करो। वो मज़ीद तावीलें करेगा, मैं उनको करने नहीं दूंगा। हाँ, दूबदू चल रही होती है, वो गालियाँ भी देता, मैं खामोश हो जाता। दूबदू बात थी नहीं। ये बात आमिर नज़ीर साहब का सरासर गलत है कि दूबदू बात हो रही थी और आसकानी साहब उनको टाइम नहीं दे रहे थे। आमिर भाई आप गलत कह रहे हैं, लेकिन हमेशा इसी तरह आपकी तरफ से हम जो है छोड़ देखते हैं सख्तियाँ। और वो भी इताब का मतलब सबब आप हैं, वो भी सबब आप हैं आमिर भाई, जिसको मैंने पर्दा डाला हुआ है। लेकिन गुस्सा आएगा तो उसको भी पाड़ दूंगा। वो भी सबब आप हैं कि आसकानी का इताब चल रहा है, सबब आप हैं, जिसको मैंने रोक कर रखा हुआ अपने दिल में। आमिर साहब चलिए ठीक है, अब बात करें, मैं खामोश रहता हूँ, अभी कोई जवाब नहीं है। अच्छा जी, वो मौला बादशाह साहब, ये असल में मिर्जा कादियानी के ऊपर वही नाज़िल हुई थी सरकारिया और ये मुफ्ती साहब एक मिनट है, मुफ्ती साहब एक मिनट सरकारिया देखें और बतरियो कितनी ज्यादती। एक मिनट मलक साहब तुसी ते खलो जो, तुसी छुरी पहले साल है लो मलक साहब, तुसी ते खलो जो, हो गया ने चुप कर जो, चुप कर। पेड़ पे हो बतरियो। और नहीं 80 नहीं पेड़ दे, 80 नहीं पेड़ दे। नहीं मतलब कितने बंदे अब आपको कह रहे हैं कि पीर असकानी भाई बात को छोड़ दें। आपसे माजरत की मुफ्ती साहब ने, आपने नहीं छोड़ा। आपको कहा गया कि इन लोगों से पूछ लें कि आप सख्ती कर रहे थे कि नहीं, नाजायज़ ज़्यादती कर रहे थे कि नहीं। आपने कहा नहीं, मुझे किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है, मैं जानता हूं कि मैं ज़्यादती नहीं कर रहा था। अब फिर मुफ्ती साहब ने फिर मिन्नत की कि पीर असकानी साहब आपकी इस गुफ्तगू से हमारे मुसलमान भाई परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपका गुस्सा है कि वो कंट्रोल हो ही नहीं रहा। अब इसको शैतान ना कहा जाए इस गुस्से को, तो क्या कहा जाए कि शैतान आप पर हावी है। ना आप किसी पंचायत को मानने के लिए तैयार हैं, ना आप माजरत कबूल करने के लिए तैयार हैं, ना आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं। क्या है जो मैं कह रहा हूं, हट जाओ पीछे, मैं फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पीर असकानी भाई किसने मेरे साथ यहां पर क्या नहीं किया जो आप कर लेंगे? वो कौन सा काम है जो किसी मुसलमान ने मेरे साथ आज तक नहीं किया जो आपके इख्तियार में वो करेंगे तो वो दुनिया तलपट हो जाएगी। एटम बम चल जाएगा, हाइड्रोजन बम है आपके पास जो चल जाएगा। यहां पर मुसलमानों ने मेरे साथ कौन सा काम नहीं किया जो आप कर सकते हैं? हद होती है। अगर कोई बंदा खामोशी से हया करे, एहतराम करे ना, तो उससे एहतराम करवाना चाहिए, वरना जो आपका दिल करता है आप करें। इतनी देर से आपकी मिन्नतें कर रहे हैं सारे लोग कि जाने दें बात को, जाने दें बात को, जाने दें। आप गलती पर थे, फिर मैं कहता हूं आप गलती पर थे। अगर मैं आपको नीचे उतारता तो आपकी तौहीन, अगर मैं खुद नीचे उतरा हूं तो आपकी तौहीन। भाई हमें बता दें कि जब आप तशरीफ लाएं तो आप वहां लिखकर चार्ट लगा दिया करें कि वो कौन सी बात है जिससे आपकी तौहीन नहीं होती, वो तरीका कौन सा है, वो तरीका हमें समझा देना। आज के बाद लिख के लगा देना कि मैं ये करने लगा हूं, तुमने वो करना है तो मेरी तौहीन नहीं होगी। अच्छा मेरी आखिरी बात सुन लीजिए, भाषण बहुत हो गया आपका। आमिर रज़ी साहब, आप दुनिया के आखिरी फैसला करने वाले हैं। जो आप कहेंगे कि गलती तो हो गई, मैंने आपको कहा कि आप फैसला लोगों से करवा लें। मैंने आपको कहा ना लोगों से फैसला करवा लें। चमचे हैं ये, आपके चमचे हैं। अच्छा ये सारे मेरे चमचे हैं, तो आपको दुनिया का कोई मुनसफ पसंद नहीं है, फिर मिर्जाई से फैसला करवा लें। नहीं, मैं बता देता हूँ। फिर आप किसी मिर्जाई को मुनसफ बना लें। लाओ टाक मास्टर को। टाक मास्टर आपका मुनसफ है तो चलो उससे करवा लें। मैंने तो कहा कि कोई
آپ دنیا کے آخری بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کا منصف ٹاک ماسٹر اور وہ کیا نام ہے اکبر خان ہے تو وہ ان سے کہلوا لیں, ان سے کہلوا لیں. لے آؤ, میں لے آؤں فیصلہ کرواتے ہیں. میں کہاں سے کون آئے گا؟ تو میں کہاں سے لے آؤں؟ تو پھر آپ کا فیصلہ کون کرے؟ آپ مجھے شیطان کہہ رہے کہ یہ شیطانی آپ کے اوپر شیطان سوار ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں آپ شیطان کے اوپر بیٹھے ہوئے دن رات. چلو ٹھیک. ہاں پھر کہنے میں کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے کہ بم گرا, مطلب جس بندے کو 10 بندے منتیں کر رہے ہوں, کون سے 10 بندے منت کر رہا ہے؟ کون سے 10 علی نے آپ کو روکا, علی نے آپ کو روکا, علی ناراض ہو کے چلا گیا. مفتی صاحب نے منت کی, میں منت کر رہا ہوں. آپ خاموش نہیں ہو رہے, آپ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیوں بولا بیچ میں؟ جس طرح سے آپ نے علیم کے ساتھ کی نا, ویسے ہی آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. عامر صاحب, ایک منٹ کے لیے جب عامر صاحب نے بات کی, میں نے اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں لالا براڑ سکانی دے اٹھتے دے نوہانا کے او بند کر دے علی. نا علی, نا او خاموش ہے, او خاموش ہو جا علی. علی نہ کرنا کرو بطریاں نہ کر. چلی گل نہیں نہ دماغ نہیں تلت ملک تو چپ کر کھپ پائی جا بچ باندرا جی ہے, چپ کر کے بہ, نہیں تو میں انہیں مرد کی تمبی لا لگا. دسن لگے اینی والی آخر 2 بندے کی گل ہو رہی صاحب تہاڈی تے ملک صاحب کی گل ہو رہی ہوئے, تیجا بندہ آ جائے مسئلہ نہیں بننا. 2 بندے کی گل ہو رہی علی بھائی 2 منٹ لے براڈ بند کر دو, ٹھنڈا ہو جائے گا مسئلہ. او بطریاں کی ہو گیا نے یار, چھوڑ دیں اس بات. اچھا جی چلیں جی. اچھا وہ ایک ادھار تھا, مولا بس قادیانی مربی نیچے کمنٹ کر رہا تھا, بطریاں چپ کرے. ملفوظات جلد چہارم صفحہ 577, ملفوظات جلد چہارم صفحہ 577 کے اوپر مرزا قادیانی کے اوپر یہ وہی لکھی ہوئی ہے جہاں پہ اس کو نازل ہوئی تھی مولا بس. یہ پتہ ہے وہی ملک طلت ہے, یہ پتہ ہے کب نازل ہوئی تھی؟ جب مرزا قادیانی کو 10 مہینے کا حمل ہونے لگا تھا نا, تو اس نے گیم بجائی تھی کالے اور کالو, یہ لاش نے آ کے مرزا قادیانی کی, تو بعد میں اس کو یہ وہی نازل ہوئی تھی مولا بس بابا تکا لگ گیا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ مار جی کا ہوں, مارو جی کا. او سور سرکاری چپ کر, سرکاریہ چپ کر. چیکاں ختم ہو گئی کہ میری امت میں ایک زمان آئے گا کہ میری امت کے علماء زمین کے اوپر آسمان کے نیچے مرزا قادیانی سی بندر تے سور خندیر مخلوقہ. اور مرزے نے کہا ہے اپنی جماعت کو کہ میری جماعت بندر سور ہے. بات سن لیجئے, بزدلی کا ثبوت بت دیجئے, آخری بات سن لیجئے. بزدلی کا ثبوت بت دیجئے, آخری بات سن لیجئے. بات ہے عامر بھائی کہ آپ ہمیشہ چوٹ پہنچاتے ہیں, سبب بنتے ہیں, اس کے بعد آپ آ کر کہتے ہیں کوئی شکایت بھی نہ کرے. شکایت کرے گا بدنام ہو جائے گا, کوئی سبب آپ ہو, سبب آپ ہو. آخری بات یہ ہے کہ آپ کا گروپ آپ کو مبارک ہو. جہاں کہیں پر آپ ہوں گے میں نہیں آؤں گا. پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید آپ میں کوئی اچھائی ہے, لیکن آپ میں انانیت فرعون جتنا ہے, فرعون. چلے پیر صاحب بات ختم. علی بھائی آپ کو بڑا لگا ہوا ہے, آپ سے میں بات نہیں کر رہا. علی صاحب میں آپ سے بات نہیں کر رہا. بھائی کیوں انہوں نے ریکارڈنگ کرانی ہے نا, انہوں نے ریکارڈنگ کرانی ہے, کرا لینے دو ریکارڈنگ کو. سبب کون ہے یہ بتاؤ, سبب کون ہے؟ پھر جب مفتی صاحب نے کہا کہ چھوڑ دیجئے, میں نے کہا چھوڑا, معاف ہے, خلاص. کب چھوڑا آپ نے, بھاشن دیا آپ نے, کیوں کب چھوڑا آپ نے؟ مفتی کے بعد آپ نے بھاشن کیوں دیا؟ بھائی صاحب مفتی صاحب کے بعد آپ پھر شروع ہو گئے. مفتی صاحب کے بعد میں نے کہا بس بات ختم ہے, آپ نہیں ختم کر رہے نا, میری بات سنیں,
मेरी बात मैंने सुनिए, उस आप वक्त चुप खत्म नहीं। नहीं किया जब आपने आकर भाषण अब दिया। आप रिकॉर्डिंग तो करा आपको लें, जवाब जो गाली देनी है मुझे फिरौन कहना है, शैतान कहना, जो ये कहना है। आपका काम है गाली हाँ, देना, कह ये लो, जो आपका कुछ काम करना है, मैं गाली नहीं दूंगा। मैंने आपको गाली के लिए रोका है। जब यहाँ पर आप पोस्टरें लगाते थे ना खवातीन की, मैंने कहा तुम्हें जेब नहीं देता आमिर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो फिर मुझे उकसाओगे? मुझे कह लो जो कुछ आपके मुंह में आता है। जब आपने गाली कह लो राज्य के, कह लो प्लीज अस्कानी भाई बाद में इसकी माफी ना मांगना प्लीज, आके हमसे माफी ना मांगना। जब आपने खड़े रहना। प्लीज जाने दे, जाने दे। तब एक मिनट आमिर भाई, जब आपने शैतान तलब सवार है इनके दिमाग पर, इनको कहने दो जो कुछ ये कहना चाहते। नहीं देखें बहुत लड़ाई हो गई है, बस करें, बस कोई और बात कर रहे हैं, देखें मतलब उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि आपको एक बार मुफ्ती साहब ने मिन्नत की, मैं ऊपर आके मैंने माजरत की कि पीर साहब आप जीते मैं हारा। नहीं मेरी बेइज्जती हो गई है, मेरी बेइज्जती हो गई है, तुम नीचे उतर गए हो, मेरी बेइज्जती हो गई है। हद होती है। ये ना नीचे जो कमेंट आ रहे हैं दोस्तों साहिबान, ये कादियानी लोग हैं, ये कादियानी हैं जो कभी आस्कानी साहब की हमायत कर रहे हैं और कभी आमिर नज़ीर साहब की। ये सब कादियानी, टोटली कादियानी। और कादियानियों का यही तरीका है, वारदात है। वो कहते हैं कि देखो मिर्ज़े कादियानी की जात और किरदार के ऊपर बात ना करो, तुम आपस में उलझा करो। कभी वाकई देवबंदी से उलझे, कभी देवबंदी बरेलवी से उलझे, और कभी बरेलवी शिया से उलझे, तो ये आपस में मसलक के आपस में लगे रहें, या आपस में दो भाई उलझे तो बस फायदा ही फायदा है इनको। तो ये असल में इनका तरीका वारदात होता है। तो आज की गुफ्तगू से कम एक जो मुस्बत चीज़ मिली है वो ये कि आप हजरात ने देख लिया कि किस तरीके से कादियानी, जब हमारे दो मुसलमान भाई आपस में कोई लड़ रहे होते हैं या कोई उलझन हो जाती है, कोई गलत फहमी हो जाती है, तो ये किस तरीके से ये लुडियाँ और बंगेड़े डालती है। और आपने ये भी देखा होगा कि दो दफ़ा मैंने बीच में जगह बनाई है और मिर्ज़े कादियानी की करतूत के ऊपर गुफ्तगू की है, और कादियानियों की चीखों पुकार शुरू हो गई है, चीखें शुरू हो गई हैं कादियानियों के, और नीचे कमेंट भी, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग चल रही है, आप वो मैसेज भी देख सकते हैं। तो ये है, तो ये मैं ये अर्ज करता हूँ, यही बात बार बार अर्ज की है कि कादियानियों को सिर्फ मिर्ज़े कादियानी की जात और किरदार पर रखे बस, और आपस च कदी असीं लड़ना ही नहीं है ही नहीं। सानू नहीं किसी फिरके नाल कोई लैनी देनी नहीं, ते अपने भरा मुसलमान भरा नाल कोई लैनी देनी ही नहीं। यकीन माने ये आमिर नज़ीर भाई यहाँ मौजूद हैं, बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े मुजाहिदीन से मेरे बड़े बड़े इख्तलाफात, और साल हा साल चले, लेकिन यकीन जाने आज हम वो एक में एक हैं, आज एक है। और ये हमारे अंदर तो ये मामले हैं, हम ज्यादा देर नहीं, हमारी नाराजगियां ज्यादा देर नहीं चलती। अभी आस्कानी साहब को गलतफहमी हो गई या आमिर साहब को हो गई या जो भी हो गया, कोई इनके मबैन हुआ है मामला, तो ये ज्यादा देर नहीं चलना, ये ज्यादा क्या 2-4 दिन चलेगा, बाद में फिर इक्का मिक्का हो जाना। हम अमर भाई पीर साहब को ऊपर ले, उनको बात करने दे। यार अमर साहब मेरी बात सुने, पता होना क्या है, यहाँ आके रिकॉर्डिंग करानी है ना, यहाँ 65 बंदे बैठे हुए हैं, जब ये तशरीफ ले जाएंगे ना अपनी ब्रॉड लगा के, वहाँ गालियां देंगे तो वहाँ भी ये 65 बंदे इनके पास पहुंच जाएंगे। नहीं मैंने उनको नहीं उतारा, मैंने उनको उठाया। प्लीज छोड़ दे, अब गर्म माहौल है, अब बात नहीं हो। मैंने उनको ऊपर उठाया था, मैंने उनको नहीं उतारा। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इस बात की, क्योंकि एक गलतफहमी की वजह से पीर साहब यहाँ तक माइंड उनका चला गया। अमर साल इस बात को छोड़ दे अल्लाह के लिए, सब फिर जिस बंदे का माइंड कंट्रोल में ना हो। ज्यादा देर नहीं चलना, क्या हो गया, या बच्चे हो तुझे की करते हो? नहीं वैसे मैंने तो इसीलिए उनको ऊपर लिया कि भाई यहाँ जो गाली देनी है दे ले। अमीर ना थोड़ा सा गुस्से का माहौल बना हुआ है, ये बस ज्यादा एक हफ्ता तक फिर सेट हो जाना। भाई है हमारे पीर साहब, भाई हैं, हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, मैं दिलो जान से इज्जत करता हूँ पीर साहब की, कोई ऐसा मसला नहीं। पीर साहब आप बात रहने दें, बाद में बात करेंगे, जरा ठंडा माहौल होकर। थैंक यू। इनकी आदत है कि ये हफ्ता महीना एक ना बनवाएं वीडियो मिर्जाइयों के लिए। कितनी वीडियो इन्होंने बनवाई है यहाँ पर, इनको देर हो रही है कि 6 महीने से पिछले से इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनवाई है, मिर्जाइयों को तमाशा लगा के नहीं दिखाया, अपने मुसलमानों के साथ गालम गलोच। ठीक है हमें भी गालियां तो मुसलमान देते हैं,
लेकिन हमने कभी जाके उनके साथ मुठभेड़ की है? ठीक है, गालियां देते अपनी बरात पे जाके, कोई जो मर्जी कहता रहे, लेकिन इनकी एक रूटीन है, इनका एक मिजाज है, उन्होंने अपने मिजाज के मुताबिक बिहेव करना ही करना, उनको कर लेने दें। मैंने तो उठाया इसलिए था कि यहाँ जो करना है यहाँ कर लें, वरना वो अपनी बरात लगा के जाके करेंगे, फिर आप सारे वहाँ जाएंगे। मुझे पता है आप यहाँ कह तो रहे हैं ना, लेकिन आप सारे वहाँ जाकर सुनेंगे, यहाँ आप नहीं सुनना चाहते। तो मेरा तो कोई इतना, मैंने तो उनको उठाया कि यहाँ वो जो कहते हैं सुन लें। मैं जब वो जो मेरे बारे में कहेंगे मैं सुनने के लिए तैयार हूं, तो आपको क्या हो रहा है? नहीं देखे, इतना टाइम लग गया है इस बात पर आपस में, मतलब है कि मैं ठीक वो ठीक, इस बात पर ये कोई और बात हो सकती थी जो मतलब कोई मुसलमान हमारा फैसला नहीं कर सकता। अगर मेरा और आपका इख्तलाफ हो जाए, मुफ्ती साहब बैठे हैं, इमरान बैठा है, ये अमर भाई बैठे, ये कह दें भाई नहीं भाई आप दोनों में से मुफ्ती साहब की गलती है, मुफ्ती साहब चुप कर जाएं, या वो कह दें कि यार अमर तुम्हारी गलती है, मैं चुप कर जाऊं। नहीं, ये तो तुम्हारा चमचा है जो कह रहा है, ये तुम्हारे सारे चमचे हैं जो तुम्हारे बारे में कह रहे हैं। भाई मैं अपना फैसला अगर खुद करूंगा या मेरे जज मिर्जाई हैं, तो फिर शर्म से डूब मरने का मकाम है राजा साहब, कि मेरा जज या मैं खुद हूं या मेरे हक में फैसला मेरे मिर्जाई करते हैं। भाई मुसलमानों में से किसी से फैसला करवा लें। मैंने यही कहा कि आप गलत कर रहे थे, मैंने आपको नहीं उतारा, नहीं टोका, मैं खुद नीचे उतर गया। बुरा किया मैंने, मेरी बेइज्जती कर दी है, नीचे उतर गए, मेरी बेइज्जती कर दी है, फिर आके फिर हम बोले भी नहीं। मैं खुश, वलीद को मैंने तो नहीं कहा नीचे उतरो, अल्लाह वादा शरीक की कसम है, मैंने वलीद को ना कहा है। अमर भाई बात ये हुई है, आपने काफी जोर से कहा है जी कि चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। हाँ। जब नहीं चुप किया आपने कहा जी चलो मैं चला जाता हूँ। हाँ जी, क्या गलत किया? इतनी सी बात है, अगर पीर साहब को उतार देते फिर तो वो कह सकते थे मुझे उतार दिया तुम लोगों ने और अलीम को ऊपर ही रखा। हाँ, ये बेइज्जती होती है। हाँ, मगर आपने कहा यार मेरी नहीं सुननी। अगर कई बार ऐसी बात होती है जब मच्छी मंडी बनी हो तो फिर उस वक्त कोई बंदा नया आ जाए तो उसकी भी सुन लेनी चाहिए कि थोड़ा सा ऑर्डर आ जाए, बात में ब्रॉड पर ऑर्डर आ जाए, ऑर्डरली बात हो। असल में तो ये होता है, पर पीर साहब जी हमारे भाई हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं तो दिलो जान से पीर साहब नहीं, मतलब क्या गलती की? अगर मैं नीचे उतर गया हूँ, अच्छे आलम दीन है, वो बड़ा नॉलेज है उनके पास, नहीं अच्छे हैं, लेकिन मतलब जज्बात पे भी कंट्रोल रखना चाहिए ना, जज्बात को बेकाबू नहीं होने देना चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला ने अगर ईमान दिया है ना, तो ईमान का तकाजा यह है कि हम अपने जज्बात को शैतान के हवाले ना करें, अपने कंट्रोल में रखें। जब सारे भाई कह रहे हैं कि हाँ आपकी ज्यादती है, हाँ आपकी गलती है, आप कहें नहीं तुम सारे तो उसके चमचे हो, तुम सारे तो झूठे हो, चोर हो, गालीबाज हो, तो जो कहना है फिर कह लें। इसमें क्या गलत किया राजा साहब? मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मिन्नत की, चुप कर जे, नहीं चुप किए। आमिर भाईओ कादियानियों को और खुश करना नहीं, हम कोई गाली तो नहीं दे रहे, हम बात कर रहे हैं। नहीं गल है वे कि ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੰਦ ਨੇ ਪਗਵਾਈਆ ਆਪਸ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਬਸ ਘੰਟੇ ਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਮੌਜੂ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤਾਜ਼ੇ ਕੋਈ 2-4 ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਪੋਸਟਰ ਇੱਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੱਲ पे ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 100% ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਸ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਵਲੀਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਦੇ ਤੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲਿਓਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਛੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਛੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲਿਓਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ੀ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਜਾਜ਼ੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਅੱਗੂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ, ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਤੂੰ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ? ਹਾਂ, ਗਾਲਮ ਗਲੋਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਕਿ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਹੀ ਵਲੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਣ ਗਏ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। नहीं असल च पता क्या होया, देखो मैं उस आया थे तो गल शुरू असल